as well as vertical. It's your choice. So we have discussed one thing yesterday about the ESMR session, right? Yes, sir. So where can we use is, where can we use are, and where can we use am? We have clearly uh, discussed regarding to this, and I think you can open that particular page, maybe on page number 55. Yes, sir. Page number 55, I think. Right, sir. Okay. So when they all come, so let's get started with today's practice regarding to the simple present tense in different form, like present continuous. Present continuous means what we are having any, like we are taking class, right? It means something is going continuously. We cannot stop it. Clear? Good evening to all guys. Today is very important discussion regarding to the present continuous tense, and I hope that you keep your camera on so that we can build some confidence in our spoken English. Good evening, sir. Good evening. Am I audible and visible to all of you? Yes, sir. Yes, Now sir. it is your uh, turn, that you make your tongue flexible and be confident while you speak anything from your idea, because it is too much important to discuss with others our idea, because we have lots of things in our mind but we don't know how to present that. Yesterday I shared one uh, video presentation of Priyanka Chopra. She used simple past tense when she explained her routine and like all. So I hope that you got some subtitle also, so that you can understand better, right? I always share the video of subtitle, so kindly go through it, because what we are learning language, okay, and language is the part of our habit, so we have to make it habit. The topmost thing comes in our life, listening. When you listen more, you can develop some more idea regarding to the English communication, right? Whenever you are listening to any celebrity, whenever you are listening to any person who has a good command or English language, uh, you also do the same. Listening is the most important part of learning any language. Am I clear? Right? Yes, Yes. sir. Suppose I am speaking in front of you, you are listening me, right? It means you are getting some ideas how to speak English fluently in front of others by facing others. Whenever you go, wherever you go, the people will remain always in front of you. It's up to you that how you present yourself in front of that particular people, whether they are celebrity, whether they are any honor of school, whether they are any honor of corporate sector, whether he is HR, whether he is many people come in contact with us, so it is up to us that how we have practiced and how we are delivering our idea in front of others. For example, I take simple example. Suppose I am sitting in front of you, but I did not prepare myself that what will I speak to you. Whenever idea crosses in my mind, I just deliver my idea. Why? Because I know how to deliver the idea and what are the grammatical part when we speak English fluently. Okay. Sometimes we face barrier in speaking, right? Suppose you are speaking and you say like and remove this type of hesitation also. This is the part that these are the barriers in the fluency. Clear? And sometimes also people speak like this. I want to say ki aisa hona chahiye. Like keyword should not be repeated here, because it leaves a bad impression on your English communication. Okay. The only thing we can remove by regular practice and dedicated effort. Suppose we have done the practice yesterday, EZMR practice. Okay, so I want everybody to quick reference about the EZMR practice. There are two options for the EZMR practice. Whether you put adjective, whether you put action. Okay,
Now you tell me what is the adjective and what is the action. We will discuss about it. Anybody can tell what are the differences between uh, action and adjective. I think you have gone through this topic in your school days and college days. This is the important topic. Anybody would like to share that what are the difference between adjective and action? I'm just asking you. सर एडजेक्टिव विशेषण है यस सर इन हिंदी Yes. And action. Write down these क्रिया two words in your notebook. Very, very important topic I am discussing today. Do not miss a single attention because it is a boon for you. It's a blessing for you for learning any language like we are going through. Today we will discuss about two things. First is adjective and second is action. In the simple present tense, we have discussed about the action like speak, understand, think, go, come, sit. If you open page number 12 in your level 1 book, you find many actions. Action is equal to main verbs. Okay. What are the actions? Actions is equal to main verbs. Sorry, page number 12. Page number maybe 12 or 15. I'm a little bit confused. 15, 15 right? सर 15. 15, maybe 15. Kindly show me the book. Yes, that's the 15 number. What are the main verbs and what are the types of adjective? And even we are describing adjective also. Like Ajay sir, you have said that adjective means visheshan in Hindi. Okay. Did Yes, you sir. learn this word adjective in school time? Yes, sir. Meenakshi ma'am? Yes, sir. Adjective means जो किसी की विशेषता बताता है जिसको हम विशेषण कह सकते हैं in Hindi generally we discuss like if I say here the word Ram is a boy, Ram is a good boy. Write down these two sentences in your English communication notebook. Understand this chapter very carefully. Keep the proper attention because we are solving lots of problem regarding to the English communication today. Write it down in notebook. Ram is a boy. Ram is a good boy. Yes, sir. Now, what is the difference between these two sentences? Ram is a boy. Ram is a good boy. राम एक Quality लड़का of- है और राम एक अच्छा लड़का है। मीन्स अच्छा ये राम की विशेषता है। हाँ सर। यस तो गुड को आप अंडरलाइन करें, ये एडजेक्टिव हुआ। यस सर। तो एडजेक्टिव को हम जैसे नाउन इंग्लिश का बॉस है, नाउन इज द बॉस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश। ओके, एंड प्रोनाउन इज द असिस्टेंट ऑफ इंग्लिश, या प्रोनाउन इज असिस्टेंट ऑफ नाउन। नाउन की प्लेस पे जो यूज होता है वो प्रोनाउन कहलाता है, राइट? सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनीबडी लाइक Om lives in Pratapgarh. He gets up early in the morning. He brushes his teeth. तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने जो यूज किया वो था ओम लिव्स इन प्रतापगढ़। तो ओम क्या हो गया? आपका नाउन हो गया, यस राइट? सर। अब इस नाउन को बार बार रिपीट ना होना पड़े, इसकी रिपीटेशन को टालने के लिए मैंने ही यूज किया, तो ही यहाँ पे प्रोनाउन हुआ, ओके। अगर हम नाउन को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा सेंटेंस यूजलेस हो जाएगा और उस सेंटेंस में हमें हंसी आने लगेगी।
क्लियर? सो नाउन की रिपीटेशन को टालने के लिए हमने वर्ड यूज किया प्रोनाउन. Okay, if we see the word pro plus noun, pro means support, to support noun. Pro means support. Write down this. जहां पर भी pro लगता है वो support के लिए यूज होता है. pro is equal to support. तो नाउन को सपोर्ट करता है. सपोर्ट कौन करता है? जो असिस्टेंट होता है वो सपोर्ट करता है. ओके, सो राइट Yes. डाउन फर्स्ट लाइन. नाउन इज अ बॉस ऑफ इंग्लिश. प्रोनाउन is a assistant. Okay, so here I clarify, I'm sharing you the screen here to clear this concept very clearly. Just give me a minute. You think about that particular sentences, you think about some more sentences. I'm sharing you the screen regarding to this. That's why you can clear the concept properly. Make some more sentences from your mind. Please make sure that your internet connection is stable, and please make sure that your cameras and earphones are working properly, because we are clearing some important concept today. Now, is it visible for everyone? Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. So, two most important points to improve English. Okay, what are the most important points to improve English? Can anyone tell? First is, let me tell. First is, Parts of speech. you can write down, you can make your own note. Okay. First is parts of speech. And the second one is, we are describing figure of speech. Clear? Have you written? Yes, sir. Yes, sir. You can write down the heading also. If you are not able to do that, you can take the screenshot also, because it's very important to know this concept. Is there any dialog box showing on your screen or not? कोई बैरियर Yes, तो sir. नहीं आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं आ रहा ना? Sir, one black. This one, Blank this नहीं one, आया, sir. this one. सर मिड में एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप आ रही है बड़ी सी. Now, हाँ, now it's okay. okay, yes. Yes. Here is written no confusion after this class. So we will discuss what are the parts of speech. First Now. is noun. Second,
pronoun, pronoun. Third, adjective, adjective. Fourth, verb, verb. Next one is adverb, adverb. Next is conjunction, no, that's या preposition. preposition, Do not say preposition, it's a preposition. What is the preposition, pronunciation? Preposition. preposition, Okay. Then conjunction, conjunction. You might have listened. Junction हमने सुना होगा, रेलवे का जंक्शन होता है, राइट? तो जंक्शन yes मतलब sir, जोड़ना, कन मतलब टू, जो दो चीजों को जोड़ता है वो होता है कंजंक्शन. एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन. interjection. Okay. If you are unable to write fast, you can take the screenshot also. Clear? So what we will discuss today regarding to this adjective is the part of our practice. Clear? Yes. Okay. So first is noun. You might have listened the definition in the school. What? Noun is the name of any place, person or thing. This is the school definition. सबने सुनी है? Yes sir, Yes. अब दुनिया में जितनी जगह थी वो सारी आपने ले ली है. दुनिया में जितने लोग थे वो सारे आपने ले लिए. और दुनिया में जितनी चीजें थी वो सारी आपने ले ली. तो बचा क्या? बताइए. आसमान. वो सब आ गई ना उसमें, चीजों में. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट हमें कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलता है और उसके बाद स्पोकन में भी देखने को मिलता है. टू मेक आवर कम्युनिकेशन मोर स्ट्रांग. देखो, हमने सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है. नाउन इज इक्वल टू एनी नेम. ओके. हर वो चीज जिसका नाम है वो नाउन है. नाउन. ओके. दुनिया में आपको जो कुछ दिख रहा है वो सब कुछ नाउन है. जैसे मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ, लैपटॉप भी क्या है? नाउन है. ठीक है. आप जूम ऐप से, जूम भी क्या है? नाउन है. बाइक से जाते, बाइक भी नाउन है. दुनिया में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जिस डायरेक्शन में जो कुछ दिख रहा है वो सब आपका नाउन है. इज दैट क्लियर? यस. Yes. ओम क्लियर? Yes, sir. आप जिस चेयर पे बैठे वो भी नाउन है. जिस टेबल पे आपने डेस्क पे बुक्स रखी हुई है वो भी नाउन है. बुक आपका नाउन है. आपका माइंड नाउन है. तो दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है वो सब कुछ क्या है? आपका नाउन है. इसको कैटेगराइज किया है. ओके. और सिंपल से डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एंड दैट इज नाउन इज इक्वल टू एनी नेम. क्लियर? यस सर. सी, आई एम होल्डिंग व्हाट? मोबाइल फोन. mobile phone, This is also noun. Now. Okay. Everything that you are carrying with you, that is noun. Clear concept? Yes, sir. yes sir, अब मुझे आप बताओ कि आप एक स्ट्रक्चर बोलते हो, आई वी यू यू दे ही शी इट राम और श्याम. यही होता है हमारा स्ट्रक्चर. अब Yes, इसके sir. अंदर नाउन कौन सा है? बताइए. एवरीबॉडी इज नाउन. राम और Ram. श्याम. हाँ. राम और Ram, श्याम. Ram. Sham, हर वो चीज जिसका नाम है वो नाउन है. Yes, आई sir. वी यू दे ही शी इट ये नाउन नहीं है. ये नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द है, ये प्रोनाउन कहलाए. ठीक है. Yes, sir. आई एम टेकिंग योर क्लास. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंद्रपाल इज टेकिंग योर क्लास. मैं चंद्रपाल की जगह एक वर्ड यूज किया मैंने, आई. तो नाउन के बदले जो शब्द आता है वो प्रोनाउन होता है. सर आई भी प्रोनाउन है? बिल्कुल. आप बार बार अजय सर नहीं बोल सकते अपने आप को. तो अपने नेम के बदले आपने एक वर्ड यूज किया, वो क्या है? आई. आई. सपोज, मे आई स्पीक, मे आई गेट इन.
इट मीन्स यू आर यूजिंग प्रोनाउन हियर, और इन्हीं प्रोनाउन को सब्जेक्ट का रूप दिया है। क्लियर? Yes, sir. Yes, एनी डाउट? ओके, सो सिंपल सा याद रखना, नाउन इज इक्वल टू Name. एनी name. नेम। हर वो चीज जिसका नाम है वो नाउन है। Noun. अब जैसे आपने बोला कि एनी पर्सन, पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो भी क्या है? नाउन है। Noun. फॉर एग्जाम्पल मेल के अंदर जैसे अजय सर, दिया कुमारी, कोई भी, मेल फीमेल कोई भी है, वो सब कुछ नाउन है। प्लेस, दुनिया की कोई सी भी लोकेशन, वो भी क्या है? नाउन है। Noun. ओके, दुनिया में जितनी भी चीजें दिख रही है वो सारी नाउन है। क्लियर? Yes. नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउन इज बॉस ऑफ इंग्लिश। क्या है ये? सर अगर कोई कॉन्सेप्ट का नेम हो तो हम्म, वो भी मतलब कि नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, सर जैसे कि किसी सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई, मान लो जैसे, दैट इज तो ऑल्सो नाउन। दैट इज ऑल्सो नाउन। इस दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, इस दुनिया में, आप हम्म, सभी अपने रूम के आसपास नजर घुमाओ, क्या क्या दिख रहा है आपको, मुझे बताओ। बताइए, बहुत एग्जाम्पल एक कुछ दो दिख है। रहा है। ये सब क्या है? कर्टेन्स, कर्टन। नाउन। तो कर्टन क्या है? नाउन नाउन है। कोई चीज है। और नाउन को Building. अभी क्या बताया मैं, नाउन को किसकी मतलब क्या पोस्ट दी नाउन को आपने इंग्लिश में? बोस ही है। बॉस। और बोस अगर सही नहीं हुआ आपका तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नाउन के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे राम हुआ तो इज लगता है, लेकिन राम एंड शाम हो गया तो आर लग जाता है। तो ये नाउन ही डिसाइड करता है कि वर्ब कौन सी लेनी। ठीक है, इसलिए नाउन को इंग्लिश का क्या कहा है? Boss. बॉस। पर्सन आपको दिखते हैं, नो डाउट। प्लेस आपको दिखते हैं दुनिया में, जयपुर, अजमेर, दिल्ली। ओके, तो ये प्लेस आपको दिखते हैं, चीजें आपको दिख रही है। अब घर में देखो, बहुत सारी चीजें दिख रही है, सब क्या है? नाउन है। Noun. क्लियर? अजय सर भी नाउन है, ओम भी नाउन है, मीनाक्षी मैम भी नाउन है। राइट? सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। वो श्योर। सर मेरा जो अभी जो मैंने पूछा था ना सर, कि कोई भी कॉन्सेप्ट का अगर कोई नेम है ना, हम्म। या कोई इमेजिनरी कोई थिंकिंग है, माइंडसेट है, या हम्म। कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी अपन नाउन बोलेंगे। बस उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। यहां तक आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए? यस सर। पर्सन, प्लेस और थिंग से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई। यस सर, पर्सन बहुत हमें अच्छे। दिखते हैं, प्लेस हमें दिखते हैं, और चीजें हमें दिखती है। एम आई राइट, यस सर। मीनाक्षी मैम? Yes, sir. ये तीनों चीजें दिखती ना लाइफ में, तो Yes, ये sir. सब क्या है? नाउन है। अब जो नहीं दिखता है वो भी नाउन है। कैसे? आप देखिए, व्हाट इज दिस? लव। ये दिखता नहीं है, इट इज नेम ऑफ एनी इमोशन, ये भी नाउन है। आप ये पॉइंट नोट करते जाए, नाउन में क्या क्या आ रहा है? पर्सन, प्लेस, थिंग, नेम ऑफ एनी इमोशन। अब इमोशन दिखती है क्या आपको, ये बताइए ना। कैन यू वैसे सी तो द नहीं इमोशन? दिखती सर, पर नहीं दिखती है, यू कैन फील दैट, दैट इज ऑल्सो नाउन। Yes, sir. तभी एक कहावत बनी इंग्लिश में, लव इज ब्लाइंड। तो वहां इज क्यों लगा? यहाँ पे ये नाउन का वर्क कर रहा है। Noun. क्लियर? और देखो आप, ने करेज, करेज मतलब क्या होता है? क्या करेज होता है मतलब वो करेज? हिम्मत, साहस। साहस, हिम्मत। तो ये Yes. क्या है? नेम ऑफ एनी क्वालिटी इज ऑल्सो नाउन। नेम ऑफ एनी क्वालिटी is also noun. So what are the point regarding to the noun? Person, place, thing, name of any emotion, name of any quality. Quality.
These all are what? नाउन Noun. नाउन ओके, इन्हीं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है ना इंग्लिश में. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सुना है आपने? Yes, sir. व्हाट इज लाफ्टर? लाफ्टर इज अ हंसना. इमोशन. हंसना खुश हाँ sir. अपने माइंड से एक एक क्वालिटी बताओ. जैसे मैंने एक बताया यहाँ पे, करेज. और बताइए. इंटेलिजेंस. Honest. क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. ओके. हैप्पीनेस. Honesty. ऑनेस्टी, वेरी नाइस. ऑनेस्टी देख सकते हैं क्या आप? No, sir. कैन यू सी द ऑनेस्टी? नो. No, feel की जा सकती है. यस, दीज आर ऑल्सो नाउन. अब मुझे बताओ, नाउन का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए? बहुत important। नाउन ही डिसाइड करता है कि वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन से आएगी. नाउन ही डिसाइड करता है कि टेंस के अकॉर्डिंग आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करेंगे. एम आई क्लियर? Yes, sir. पर्सन, प्लेस, थिंग, नेम ऑफ एनी इमोशन, नेम ऑफ एनी क्वालिटी, all are नाउन clear. So Yes, sir. noun is equal to any. Any. एनी नाउन Okay. तो मैं चाहता हूं कि सभी 5 एग्जाम्पल आपको देने. एक पर्सन का देना है, एक प्लेस का देना है, एक थिंग का देना है, एक नेम ऑफ एनी इमोशन का देना है, और एक नेम ऑफ एनी क्वालिटी का देना. आप नोट डाउन कर लीजिए अपने माइंड से और मुझे बताइए एक एक एग्जाम्पल सबके. एनीवन कैन टेल. So, for example, पर्सन का एग्जाम्पल दीजिए. okay, हम्म Gayatri, गायत्री. ये हो गया फीमेल. मेल में कोई भी नेम बताइए. Pawan, पवन. ओके. प्लेस. Switzerland, स्विट्जरलैंड. थिंग. table, टेबल. नेम ऑफ एनी इमोशन. fear, व्हाट? fear. Fear is not emotion. टीयर. नो. Certainly, fear, that. Fear, yes. Tear and fear both are different. Tear, you can touch the tears, but you Yes. cannot touch fear. Yes. What is emotion? You cannot see, you cannot touch. जिनको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते. Yes. That is quality and emotion also sometimes. Okay? पर्सन को हम देख सकते हैं, प्लेस को हम देख सकते हैं, और थिंग को हम देख सकते हैं. इमोशन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. क्वालिटी को भी देख नहीं सकते और छू नहीं सकते. क्लियर? Yes, sir. क्वालिटी. टेल Honesty. क्वालिटी. Honesty. ऑनेस्टी. ओके. नाउ नेक्स्ट, हु इज टेलिंग? मे आई स्पीक सर श्योर श्योर. सर पर्सन एग्जांपल इज अजय ओके. प्लेस एग्जांपल इज उदयपुर ओके. थिंग एग्जांपल इज चार्जर ओके. and emotion example is hate ओके. and quality example is brave. ओके. ब्रेव. नेक्स्ट. वेरी नाइस एग्जांपल्स. Yes. अजय सर सर, मैं फिर आपसे, अजय सर, मीनाक्षी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आपने ये चीजों के नाम बताए, क्या इन्हीं के अकॉर्डिंग हेल्प और लगाई जाती है? Yes, sir. ईज कहाँ आएगा? जैसे अजय ईज आएगा, तो अजय को देख के ईज आया ना. Yes, sir. अजय और संजय होता तो क्या आता? आर आता. तो नाउन ही तो डिसाइड कर रहा है कि मुझसे वर्ब कौन सी लेनी है. Yes. ठीक noun है is ना a अजय boss. सर? नाउन इज द Yes, sir. बॉस ऑफ इंग्लिश. और जिसने अपना बॉस ठीक कर लिया है, उसकी पूरी इंग्लिश ठीक हो जाती है. सर आधा आप टाइम तो इसमें कंफ्यूजन में ही लग जाता है कि नाउन क्या है और वर्ब क्या है क्योंकि
वर्ब मैं में एस आपके लगता साथ है तो वो सिंगुलर बन जाता है, और नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। मैं वो चीज बता रहा हूँ, जैसे आप देखो लव, लव यहाँ पे वो एक्शन वर्ब भी है और नाउन का काम भी करती है। जैसे आपने कहा लव इज ब्लाइंड, तो यहाँ पे लव क्या है? ये नाउन है। नाउन है। ओके। एंड पीपल लव देयर पेरेंट्स, तो यहाँ लव हम्म। एक्शन यानी कि वर्ब का काम कर रही है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो सेंटेंस के बीच में आ रही बीच में है। आ रही क्लियर? है। Yes. सर फेसबुक जो है वो थिंक के अंदर आएगा ना? फेसबुक नाउन बिल्कुल। है, वो थिंक के अंदर है। फेसबुक इज ए नाउन। ठीक है सर, उसके ओके। ऐप को हम टच कर सकते हैं डिजिटली, वर्चुअली। यस सर। ओके। Yes, Om, it's your turn to tell person, place, thing, emotion, and quality. Yes, sir. Vijay and Uma, a Hmm. person. Place, Ahmedabad. place, Ahmedabad is a place. Ahmedabad. Ahmedabad. Okay. के Thing, बाद थिंग लैपटॉप. laptop. Emotion. इमोशंस आर हैप्पी. Happy is not a noun. Happiness. हाँ सर, हैप्पीनेस. Happy is adjective. देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आपको होता है। हैप्पी और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है? अजय सर, मीनाक्षी मैम, ओम। हैप्पी कौन होता है? कोई पर्सन होता है, यस राइट? सर. तो जो पर्सन की विशेषता बताता है वो तो एडजेक्टिव होता है। Like he is happy and happiness is a good thing. यस, लकी इज हैप्पी पर्सन, तो ये लकी की विशेषता है कि वो हैप्पी है। तो नाउन की विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो हैप्पी क्या हो गया? हैप्पी हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव। हैप्पीनेस, खुशी। देखो अगर इसको हिंदी में समझे, खुश और खुशी में क्या फर्क है? खुश तो कोई आदमी होता है, और और खुशी खुशी कोई अंदर लड़की से होती आती है। है। दैट इज द डिफरेंस, राइट? तो यस खुश सर. और खुशी में ये फर्क है। खुश तो क्या है आपका? क्या कहलाएगा खुश? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। और खुशी नाउन। यस क्लियर? सर. तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर सीखे उसमें आपको क्या लगाना है? एडजेक्टिव लगाना है। क्या लगाना है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे? हैप्पी, आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, इट इज हैप्पी, राम इज हैप्पी, श्याम इज हैप्पी। क्या लगाया हमने? एडजेक्टिव। यस Ram सर. ओके। is a noun and happy is adjective. यस, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। सर क्लियर? वर्ब नहीं हो सकती ना, हैप्पी? नहीं, नहीं है। हैप्पी वर्ब कैसे हो सकती? वर्ब वो होती है जिसके पीछे हिंदी में ना आता है। खाना पीना, सोना, आना, धोना, रोना, बैठना, लिखना, पढ़ना, जिस किसी के भी पीछे हिंदी में ना आता है वो वर्ब होती है। ठीक है। हम जो भी ओके सवेरे सर। से लेके शाम तक काम करते हैं उन सब के पीछे क्या आता है? ना। फॉर ना। एग्जाम्पल उठना, फिर पानी बैठना। पीना, खाना, हम्म, जाना, आना, लिखना, सोना, बैठना, पढ़ाना, पढ़ना, समझाना, समझना। क्या चलना. सबके पीछे सारे क्या पीछे ना आ रहे हैं? तो ना के हाँ, वाले सारे वर्ब कहलाई। क्या कहलाएगी? verb. वर्ब. वर्ब, यानी कि वर्ब। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है वर्ब। ठीक है। अभी हम डिस्कशन ओके कर सर। रहे हैं एडजेक्टिव को समझने के लिए। ये सारी जो रामायण किसके लिए हो रही है? एडजेक्टिव को समझने। एडजेक्टिव। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल यूज किया, ओम ने यूज किया हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की यस. अगर आप हिंदी करेंगे तो खुशी होता है। तो खुशी अंदर से फील की जाती है। तो जो ये क्या हुआ? नेम ऑफ एनी क्वालिटी हो सकता है, इमोशन हो सकता है, राइट? तो ये इसको अंदर से आप फील कर रहे हैं तो दैट इज अ नाउन। और अगर हैप्पी कहेंगे तो दैट इज लाइक ओम इज वेरी हैप्पी टुडे। तो ये ओम की विशेषता बता रहा है हैप्पी शब्द। समझ में आ गया? यस. यस सर. अजय सर इज अ गुड टीचर। अजय सर इज एन इंटेलिजेंट टीचर। तो इंटेलिजेंट किसकी विशेषता है?
अजय सर। अजय सर की। तो नाउन की जो विशेषता बताता वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, यस सर। क्लियर। तो अभी पहले नाउन को समझिए, नाउन को समझेंगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, क्योंकि कई लोगों को एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो एनी प्रॉब्लम हियर? हाँ, नेम ऑफ एनी इमोशन क्या बताया आपने? और हैप्पीनेस। नेम ऑफ इमोशन सर हैप्पीनेस। और नेम ऑफ क्वालिटी? नेम ऑफ क्वालिटी कॉन्फिडेंट। इंटेलिजेंस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट नहीं। देखो, अब सर दिमाग लगा के कॉन्फिडेंट। बताइए ओम, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है बताइए? कॉन्फिडेंट मतलब सर। कॉन्फिडेंट कोई आदमी होता है? हाँ सर। लाइक ओम इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट टुडे, तो ये कॉन्फिडेंट किसकी विशेषता है? ओम की सर। ओम की। पर्सन तो पर्सन जो की। नाउन की विशेषता बताता है वो तो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एग्जैक्टली। एडजेक्टिव। ओके। और अगर मैं कहूं कि ओम हैज वेरी गुड कॉन्फिडेंस, अब बताइए मेरे को, ये कॉन्फिडेंस क्या चीज है? दैट इज नाउन। क्वालिटी। ये यस सर। क्वालिटी हो गई। क्लियर। तो मुझे यस। लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा 1-2% आपका डाउट क्लियर हुआ। हुआ ही नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। मीनाक्षी मैम, Yes, sir. कहीं ना कहीं कोई क्लियर हो रहा है कि एडजेक्टिव ये चीज है और नाउन ये चीज है? Yes, sir. ये चीजों की समझ Confidence is a आपको। noun and confident is a adjective. एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए बताइए। जैसे मैं आपको कहता हूं कि गुड और गुडनेस में क्या फर्क है? गुड और गुडनेस। गुड सर एडजेक्टिव है और गुडनेस नाउन। कैसे पता चला? क्योंकि गुड तो कोई पर्सन होता है, तो पर्सन की हाँ विशेषता सर। होती है ना? और गुडनेस यस। अच्छाई किसी के अंदर होती है, भलाई। हाँ सर, इसलिए वो नाउन हो जाता है, क्वालिटी हो गई ना। अब मैं चाह रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल तीनों दे दो तो मुझे पता चले नाउन एडजेक्टिव का, दोनों में डिफरेंस करके, तो मैं श्योर हो जाऊं कि आपको कोई डाउट नहीं रहा। आज हमारी जो टॉप प्रायोरिटी वो क्या है? एडजेक्टिव को समझने की। ठीक है। हाँ अजय सर, आप बताएं। जेलस और जेलसनेस। जेलियस और जेलियसनेस, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप एक्सप्लेन करें इसको। Honest and honesty. ऑनेस्ट एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्ट क्या है और ऑनेस्टी क्या है? Honest है मतलब कि कोई व्यक्ति ऑनेस्ट होगा, वो ईमानदार होगा, लेकिन ईमानदारी जो है वो एडजेक्टिव है। यस। हाँ। ईमानदारी क्या है? एडजेक्टिव है कि नाउन। नाउन है? मीनाक्षी मैम, ऑनेस्ट। ईमानदारी एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट तो कोई पर्सन होता है ना, तो ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया ना। जी। और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, अभी आपने एक प्रोवर्ब सुनी, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। यस सर। तो ऑनेस्टी वहां क्या हाँ। काम कर रही है? नाउन का काम कर रही है। आपने और भी सुना होगा, लव इज ब्लाइंड। तो लव क्या है यहाँ पे? नाउन है। यस सर। हाँ। ओके। और आपने सुना होगा, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर क्या है? यस। नाउन है। नाउन। हंसी। ओके, यस सर। क्लियर। यस सर। Okay, let's go ahead with the next slide to understand the Honesty better is a concept. noun. Have you understood the concept? यस सर। For example, अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा और आपको उसके फंक्शंस नहीं पता है, तो क्या आप उस मोबाइल का यूज कर सकते हैं? नो कर सर। सकते हैं? नहीं कर सकते। अब नाउन काम क्या करता है मुझे बताओ। नाउन समझ लिया, नाउन का काम क्या है? देखो अभी बताते हैं आपको। अब इट्स ओके।
on the screen, right? Everybody can see properly? See यस that. सर। जैसे कोई इमेज दिख रही है आपको, किसकी इमेज दिख रही है? मीटिंग। मीटिंग। यस सर। जैसे इस मीटिंग के अंदर एक बॉस है, राइट? तो यस नाउन का भी यही वर्क है। हु इज नॉट कनेक्टेड? एवरीबडी इज कनेक्टेड? यस मीनाक्षी सर। मैम इज नॉट कनेक्टेड। यस सर, कनेक्टेड। अजय सर? आई थिंक ही lost that important. ओके, अजय सर ज्वाइन करें। इतने आप बताएं मुझे इस इमेज के बारे में, मीनाक्षी मैम। सर इसमें जो बॉस है वो नाउन है, हम्म। और जो ये सब एम्प्लॉयर है ये सब दे बोथ आर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है अजय सर। सर, अजय सर इज बैक। अजय सर, व्हाट हैपेंड? सर इंटरनेट इशू हो गया था सर, इसलिए ओके, अब आपको। नाउ इज इट स्टेबल और नॉट? सर currently is working, but Now can after you some. see the image on the screen? Yes sir, visible Okay. correctly. तो नाउन का काम जो होता है इंग्लिश में वो ये है कि कोई भी कंपनी होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, राइट? अकाउंट यस। डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे इंग्लिश में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो इंग्लिश में 8 डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है? 8। 8 8। 8। डिपार्टमेंट। और उन 8 डिपार्टमेंट का हेड कौन है? नाउन है। ठीक है, इसलिए नाउन को कहा है नाउन इज द बॉस ऑफ इंग्लिश, क्योंकि नाउन ही डिसाइड करता है सब कुछ। एडजेक्टिव भी किसके अकॉर्डिंग आता है? नाउन। नाउन के हिसाब से आता नाउन। है। वर्ब भी किसके हिसाब से लगती है? नाउन के। जैसे मैं कहूँ राम इज, और राम एंड श्याम होगा तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यस। तो बॉस ही डिसाइड करता है कि वर्ब कौन सी लगेगी, बॉस ही डिसाइड करता है कि एडजेक्टिव कौन सा आएगा, बॉस ही डिसाइड करता है कि वर्ब कौन सी आएगी। सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है? नाउन। बॉस। तो ये वाली नाउन। जो पोजीशन है ना, ये नाउन की। अब प्रॉब्लम ये थी कि लोग इंग्लिश तो जानते लेकिन उनके क्या क्लियर नहीं होता है? ये वाला क्लियर नहीं होता है, नाउन क्लियर नहीं होता। ओके, अब बॉस ही अगर आपका गड़बड़ है ना, तो फिर आगे ऑब्वियसली प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। ठीक है ना? देखो अब आप समझो इसको थोड़ा अच्छे से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये नाउन की पोजीशन है, समझ आया? क्या दिख रहा है आपको? नाउन इज द एंग्री फेस। बॉस। और अगर नाउन आपका एंग्री हो गया इंग्लिश में, तो ये समझ लीजिएगा आपकी पूरी इंग्लिश एंग्री हो जाएगी। सही है सर। ही लुक्स वेरी अग्रेसिव। यस। तो बॉस तो हमेशा क्या होता है? अग्रेसिव ही होता है। काम लेना है ना बॉस को तो। ठीक है, तो इसलिए ये इमेज, इसलिए यहाँ पे बेबी बॉस वाली जो इमेज एक मूवी बनी थी उसकी इमेज है ये, बेबी बॉस। आप मूवी देखना, बहुत अच्छी है। So aggressive is a noun and aggressiveness is adjective. Exactly. Now, aggressiveness is a noun Oh, sorry. and aggressive is an एडजेक्टिव। Right. adjective. Yes. अब कौन चला गया? Om. Om is back. What happened? What is happening? Internet is disturbed. सर कॉल सर आ गई थी जो वो इंटरनेट हो और गया। बोल सब छोड़ दीजिए। यस सर। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपका पूरा फोकस इसी में लगा ही है। सर तो नाउ, हाँ। जैसे सर ये एग्जांपल दिया ना आपने, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, गुड और ऑनेस्ट वाला, तो हम्म, ऐसा कोई एक एक एग्जांपल दो ना जिसके अंदर दो वर्ड मिलके कोई वर्ड बन रहा हो, जैसे कि। देखो मैं बताता हूँ, आप वर्ब से भी नाउन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, मैनेज। मैनेज क्या है? वर्ब है। यस सर। हम्म। अगर इसको हम स्ट्रक्चर में डालें तो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, आई मैनेज, वी मैनेज, ही मैनेजेस, राइट? हम्म। आई डोंट मैनेज। तो यहाँ पे एक्शन डाली हमने, सिंपल प्रेजेंटिंग टेंस की, राइट? अब इस हम्म। मैनेज में एम ई एन टी जोड़ने से नाउन बन जाता मैनेजमेंट। Management. Yes. ठीक है, इसी तरह से आर्ग्यू। आर्ग्यू क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से नाउन कैसे बनाएंगे आप बताइए? Argument. आर्ग्यूमेंट। हाँ।
अब समझ में आया, दिमाग के चित्त और पट खुल रहे हैं। हाँ सर। खुल रहे नहीं खुल रहे? यस यस सर। सर। स्टार्टिंग में एक लाइन आई थी, नो कंफ्यूजन आफ्टर दिस क्लास, पढ़ी थी वो लाइन आप? यस सर। ओके। इसीलिए तो लोगों के सिलेक्शन नहीं होते हैं जॉब्स के अंदर, क्योंकि उनके नाउन क्लियर नहीं होते हैं। तो नाउन क्लियर करना हमारे स्पोकन और कम्युनिकेशन के लिए भी जरूरी है, एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी। क्लियर? यस जैसे मैंने आपको एक यस। एग्जांपल दिया था, ब्रेड एंड बटर इज, ब्रेड एंड बटर आर, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। क्योंकि ब्रेड एंड बटर क्या थे वहां पे? नाउन था। और नाउन ही डिसाइड करेगा वर्ब कौन सी लगेगी, इज लगेगी या आर लगेगी। तब जाके हमारा एक टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सुना है टॉपिक आप? यस सर। या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोर्ड। तो सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। सिमिलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल। 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 तो आप देखो, नाउन का एग्रीमेंट वर्ब से हो रहा है नहीं हो रहा है, तभी आपकी इंग्लिश सक्सेसफुल है, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं है। क्लियर? तो नाउन यस। की पोजीशन आप हमेशा ये दिमाग में रखना, ये वाला, बेबी बॉस। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। वर्ब किसके हिसाब से लगती है? वर्ब किसके वर्ब हिसाब से लगती है? हाँ, फिर नाउन के नाउन हिसाब के से। हिसाब से। नाउन के हिसाब से। अब कैसे मैं बताता हूँ। बॉस के अजय हिसाब से। लर्न्स इंग्लिश, अजय लर्न्स इंग्लिश, राइट? तो लर्न में इस किसकी वजह से जोड़ा आपने? सब्जेक्ट की नाउन वजह की से। वजह। नाउन की वजह अजय से। की वजह से। तो अजय क्या है? नाउन है। नाउन। नाउन। तो बॉस ही तो डिसाइड कर रहा है ना वर्ब कौन सी आ रही है। यस सर। अगर मैं कहूँ ओम एंड अजय लर्न इंग्लिश, तो ओम एंड अजय क्या हो गए? बॉस हो गए। तो लर्न यस में सर। से एस हट गया। जैसे मैं कहूँ मीनाक्षी प्लेज फुटबॉल, तो ये प्लेज में एस क्यों जुड़ा मीनाक्षी में? बॉस की वजह से, मीनाक्षी की वजह से। मीनाक्षी की वजह से, बिकॉज क्योंकि ऑफ मीनाक्षी इज द नाउन। बॉस ऑफ सेंटेंस। यस। तो बॉस ही डिसाइड कर रहा है कि वर्ब कौन सी आएगी। आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहे ना अपने लेवल पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलता है। अगला क्या है? आर्टिकल भी किसके अकॉर्डिंग लगता है? नाउन। नाउन की वजह से सर। कैसे? आई हैव अ मोबाइल, मोबाइल के आगे अ लगा दिया आपने। यस सर। लेकिन जैसे आई हैव टू बॉयज, तो बॉयज आए तो आर्टिकल हट गया। यस सर। आई हैव अ बॉय, अ अ के कारण बॉय आ गया। तो आर्टिकल ही डिसाइड किसकी वजह से हो रहा है? नाउन की वजह से। नाउन की नाउन वजह की वजह से। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, से। वर्ब डिसाइड करेगा नाउन, आर्टिकल डिसाइड करेगा नाउन। नाउन। जैसे सन बोला, सन मतलब सूर्य, तो द आ जाता है उसके आगे। सन। तो सन इज अ नाउन। क्लियर? यस सर। यस। एडजेक्टिव किसके हिसाब से लगता है? नाउन। एडजेक्टिव भी नाउन के हिसाब से लगता है। यस। इसकी ही तो हम प्रैक्टिस करने वाले थे। और देखो क्या लगता है, प्रोनाउन किसकी वजह से लगता है? नाउन। नाउन नाउन। की वजह से। जैसे आपने सेंटेंस यूज किया, जैसे नाउन ले लिया, मान लो मीनाक्षी, तो मीनाक्षी के लिए ही लगाना है या शी लगाना, क्या लगाना शी। है? तो शी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन प्रोनाउन। किसके हिसाब से लग रहा है? नाउन के हिसाब से लग रहा है। हम्म, अगर यहाँ पे अजय होता तो प्रोनाउन क्या होता? ही। और ये लैपटॉप होता तो प्रोनाउन क्या होता? इट। 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 तो नाउन ही तो डिसाइड कर रहा है ना प्रोनाउन कौन सा आएगा। यस सर। अब बताओ नाउन, नाउन का क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में? बॉस। अभी बॉस को इसीलिए मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। ये जब तक आप ठीक नहीं करोगे, आपकी इंग्लिश भी आपसे ऐसे ही पेश आएगी। यस सर। पूरी ठीक है, इंग्लिश ही नाउन पे टिकी है। पूरी इंग्लिश नाउन इज। मैंने आपको इमेज इसलिए बताई, वो पूरी कॉर्पोरेट वाली, कि ये अलग अलग 8 डिपार्टमेंट है इंग्लिश के। 8 डिपार्टमेंट का हेड कौन है? नाउन। नाउन। ठीक है। और देखो क्या है, प्रीपोजिशन किसके अकॉर्डिंग लगती है? नाउन के अकॉर्डिंग। नाउन। पूरा फंडा इसी के ऊपर टिका है, इसलिए नाउन इज द
बॉस ऑफ सर इंग्लिश। preposition तो नाउन पे कैसे टिकी होती है सर, वो तो। बिल्कुल, एग्जाम्पल आएंगे बहुत सारे, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है, नाउ इज द बॉस ऑफ इंग्लिश। हम्म, क्या ध्यान रखेंगे? नाउन Now इज द बॉस ऑफ बॉस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश। ठीक है। प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सब कुछ डिपेंड करता है नाउन के ऊपर। कैसे ना डिपेंड करेगा वो आपको डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी सर। ओके। हमने आपसे प्रॉमिस किया था बाल की खाल निकालने वाला, याद है आपको? यस तो बाल की खाल की भी खाल निकालेंगे इंग्लिश की, और उसमें आपका बॉस ठीक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। जब सबका बॉस ठीक हो जाएगा ना, तो सारा कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक। यस yes, सर। अब फंक्शन क्या क्या है, ये सब डिटेल हम पढ़ेंगे, ये सारे चैप्टर्स। क्लियर? यस सर। हाँ। अब मुझे बताइए कि कोई भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं ना, यस आई सर। वी यू, यू दे ही शी इट। उसके बाद क्या रखते हैं आप बताओ? सब्जेक्ट के बाद क्या, नेक्स्ट वाला क्या स्ट्रक्चर में आता है? वर्ब आती है ना। वर्ब फिर उसके बाद आती क्या है। होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस सब्जेक्ट। होता है ना। ठीक हाँ है। सर। यस सर। अब देखो, आपका और मेरा सबका फेवरेट था कभी, अभी तो नहीं है, खैर ये हट गया, इमेज चेंज करनी पड़ी मेरे को। हाँ। कौन दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? मीनाक्षी मैम। विराट। विराट कोहली। मीनाक्षी मैम, कौन दिख रहा है स्क्रीन तो पे? विराट कोहली। विराट कोहली। सब जानते हैं इसको? यस। यस सर। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ हम आपको दे देते हैं। क्या सेंटेंस आया? विराट विराट प्ले क्रिकेट। विराट क्रिकेट। प्लेस विराट क्रिकेट। प्लेज प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट। अब मुझे इसमें बताओ, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है? विराट सब्जेक्ट है सर, प्लेस वर्ब, क्रिकेट विराट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। हम्म बताइए, खुल के प्ले पार्टिसिपेट करें इसमें। प्लेस क्या है? वर्ब है। वर्ब। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। तब ऑब्जेक्ट। नाउन का आपके दिमाग में क्या आ रहा है मेरे को बताओ, नाउन क्या काम कर रहा है यहाँ पे? नाउन किसी भी सेंटेंस में क्या बन के आ रहा है? क्या सब्जेक्ट बन और के आ रहा है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी बन सब्जेक्ट। के आ रहा है, और ऑब्जेक्ट भी बन ऑब्जेक्ट। के आ रहा है। ऑब्जेक्ट भी बनता है। क्लियर हुआ? नाउन यस। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बनता है, और किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी बनता है। क्लियर? तो यस सर। नाउन का पहला काम क्या हो गया? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब अगला सेंटेंस देखो, क्या है? दिस इज विराट्स बैट। बताओ, क्या बता रहा है यहाँ पे? लगाइए दिमाग। So Virat ये is the विराट का बेट noun है and bat is also a noun. और सर। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन यूज है, पजेशन बता रहा है कि बल्ला किसका है? विराट। विराट। विराट का है। यानी इस बल्ले पर हक किसका है? विराट का। विराट का विराट। है। तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट में बता रहा हूँ, नाउन के काम बता रहा हूँ। एक तो आप किसी भी सेंटेंस में क्या बन के आता है? सब्जेक्ट बन के आता है। फिर ऑब्जेक्ट बन के आता है, और पोजीशन भी बताता है। क्लियर? ये नाउन के तीन काम आप लिख लीजिए। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनना, और किसी भी सेंटेंस का पोजीशन बताना। ये तीन काम है। लिख लिए? अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं बताइए आप। अब से आप जब सेंटेंस बनाएंगे ना, प्रॉपर बनना चाहिए सेंटेंस। देखो, ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ये दो काम और हैं, इसको बाद में डिटेल में समझते हैं। यहां तक आपकी क्लियर हो गया? अब ये तो था हमारा कि इस क्लास में आपने देखा, तो कुछ आ रहा है स्क्रीन पे, क्लियर है सब कुछ? यस सर। अब एडजेक्टिव हमें पता चल गया। एडजेक्टिव हमारा होता है
हैप्पी, सैड। ओके, तो उस बुक में आप देखो एडजेक्टिव वाला कहीं कॉलम प्रैक्टिस लिखा हुआ है, आप चेक करो। कॉलम प्रैक्टिस के अंदर मैं भी चेक करता हूँ पेज नंबर, लेट मी गिव सम टाइम। अब उसकी हम प्रैक्टिस लेने वाले हैं। पीछे आ जाइए, पेज नंबर 130 125 के बाद में चेक करें, and check after 135 or 125. Maybe I'm a little bit confused in that, but I will check what is the page number for that. Is it column practice करके होगा? Oh, okay, यस okay. सर। 133. Page number 133. 133. Very nice. I'm also coming on page number 133. वन 138 also. देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे क्या चीजें? कॉलम प्रैक्टिस। कॉलम प्रैक्टिस तो है, लेकिन इन सभी को एडजेक्टिव कहते हैं। यस सर। What we can say these all? एडजेक्टिव। What page number 133? 31, 32, 33 पे तो है ही नहीं। 138 sir, I think. 38. Yes. Yes, sir. See, these all are. Can you see the screen also? These all are what? Adjective. Brave कौन होता है? पर्सन होता है। क्लेवर कौन होता है? पर्सन होता है। टॉल कौन होता है? पर्सन प्लेस थिंग हो सकती है, राइट? शॉर्ट, बोल्ड, ये सारे आपको लगाने इज एम आर वाले में। किस में लगाने हैं? Is हमारा इसमें। ओके, तो इनमें से आपकी पसंद का कोई भी एडजेक्टिव चूज करके 1 मिनट प्रैक्टिस करेंगे हम। अब जैसे मैंने चूज किया रिच। ओके, तो रिच चूज किया, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम रिच, वी आर रिच, यू आर रिच। ओके, देन यू कैन स्पीक दिस इन द फुल टाइप 1 to टाइप 6। क्लियर? Yes, sir. Sir, विच can you repeat this thing again? मतलब इसके अंदर जो पेज नंबर 138 पे लिखे हुए हैं ना, ये इनमें column। से कोई भी एक आप एडजेक्टिव उठाइए, जैसे ब्रेव लिखा हुआ है इसमें, तो इस हम्म ब्रेव को आपको वहां उस स्ट्रक्चर में रखना। कल हमने विदाउट एडजेक्टिव प्रैक्टिस की थी, आई एम, वी आर, यू आर, तो उसके आगे बोलना है इसको, Yes, ब्रेव sir. बोलना है। जैसे आई एम ब्रेव, वी आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, दे आर ब्रेव, ही इज ब्रेव, शी इज ब्रेव, इट इज ब्रेव, राम इज ब्रेव, देन अजय इज ब्रेव। फिर आप ठीक है। चाहें तो एडजेक्टिव अपने हिसाब से टाइप सेकंड में चेंज कर सकते हैं। जैसे आई एम नॉट सैड, वी आर नॉट सैड, यू आर नॉट सैड, ऐसे डी सैड। ओके, सैड इज ऑल्सो एडजेक्टिव। हम्म और आप कह सकते हैं आई एम नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। वाई? आपको कुछ भी एडजेक्टिव लगाना है जो उस सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें कि आज आपको एडजेक्टिव के साथ प्रैक्टिस करनी है इस की। कैन वी स्टार्ट दी stopwatch also here? मैं करके बताऊं प्रैक्टिस? यस सर। मेरे बताने से क्या होगा? मेरी इंप्रूवमेंट होगी। तो मान ही नहीं रहे हो आप। कर लेंगे सर हम। हाँ, आप मेरे को इम्प्रूव करना चाहते हो या खुद इम्प्रूव होना चाहते हो? खुद इम्प्रूव। सर, फिर आप तो इससे ज्यादा इम्प्रूव क्या होगी? इम्प्रूव तो वो होता है जिसमें कोई गलती हो। और भी सीख रहे हैं मैम। जरूर नहीं, नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सीखने का जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। ओके, कई लोगों के पास सब कुछ फैसिलिटी, सब कुछ होते हैं, फिर भी नहीं सीख पाते। एम आई राइट? और कई सर लोगों के वो पास कुछ नहीं फैसिलिटी होता है, लेकिन जुनून इतना होता है उसके पास। जुनून इज फैसिलिटी होती है एवरीथिंग। ना सर, उसी वजह से नहीं सीख पाते ज्यादा तो। यस, आप देखो कि कहीं झोपड़ी में लालटेन से पढ़ के आईएएस आरएस बन जाते लोग।
उन्होंने भी तो स्ट्रगल किया होगा ना। डिस्ट्रक्शन नहीं होता सर उनके, इसलिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब परिस्थिति आपको सब कुछ सिखा देती है, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। सही है ओके, सर। कंफर्ट जोन को जितना साइड में रखेंगे ना उतना बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा टाइम जीवन में वेस्ट कर दिया है, जीवन के 25-30 साल, अब नहीं वेस्ट करना है। ओके, लेट्स गो अहेड। हु इज टेकिंग प्रैक्टिस? कैन यू सी सर द मैं, stopwatch on the screen? नो सर। Is it not sharing? Wait, I also share the full screen here. Now, can you see? Yes, sir. Okay. So who is going through practice? एडजेक्टिव भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप चाहे इनमें से चूज कर सकते हो। यस ओके, सर। और आप चाहें तो हर स्ट्रक्चर में टाइप 1 में अलग एडजेक्टिव ले लीजिए, टाइप 2 में अलग ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ओके, हाँ, हु इज टेकिंग फर्स्ट स्टेप? मैं ट्राई सर। श्योर, योर टाइम स्टार्ट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I am brave, we are brave, you are brave, you are brave, they are brave, he is brave, she is brave, it is brave, Ram is brave, Ajay is brave. I am not clever, we are not clever, you are not clever, you are not clever, they are not clever, he is not clever, she is not clever, it is not clever, Ram is not clever, Ajay is not clever. Am I short? Are we short? Are you short? Are you short? Are they short? Is he short? Is she short? Is it short? Is Ram short? Is Ajay short? Am I tall? Are we tall? Are you tall? Are you tall? Are they tall? Is he tall? Is she tall? Is it tall? Is Ram tall? Is Ajay tall? What am I poor? टाइप What are टाइप 4 is disturbed because in place of type 4 you spoke type 3. I want you sorry? to have practice again because you have spoken. You take only one adjective, so you will not get any confusion. Like first, take the 10 number. I am fine. Okay, Fine. Okay, sir. fine. Type 4 Clear? से start करूँ sir? No, start from first with very Okay, sir. fast. Okay, First sir. and fast. Okay, your Okay, time sure. starts now. I am fine, we are fine, you are fine, you are fine, they are fine, he is fine, she is fine, it is fine, Ram is fine, Ajay is fine. I am not fine, we are not fine, you are not fine, you are not fine, they are not fine, he is not fine, she is not fine, it is not fine, Ram is not fine, Ajay is not fine. Am I fine? Are we fine? Are you fine? Are you fine? Are they fine? Is he fine? Is she fine? Is it fine? Is Ram fine? Is Ajay fine? Am I not fine? Are we not fine? Are you not fine? Are you not fine? Are they not fine? Is he fine? Is she fine? Is it fine? Is Ram fine? Is Is it Ajay not? fine? Is he not fine? Is he not fine? Is she not fine? Is it not fine? Is Ram not fine? Is Ajay not fine? What am I Why am I fine? fine? Sorry, Why? why am I fine? Why are we fine? Why are you fine? Why are you fine? Why are they fine? Why is he fine? Why is she fine? Why is it fine? Why is Ram fine? Why is Ajay fine? Why am I not fine? Why are we not fine? Why are you not fine? Why are you not fine? Why are they not fine? Why is he not fine? Why is she not fine? Why is it not fine? Why is it not fine? Why is Ajay not fine? See, what is time? 1 minute 18 seconds. You need practice. Clear? Yes, sir. Who is and what action? Oh, sorry, what adjective? These all are adjective, not action. Okay. Who So is only trying? from present continuous tense. No, it's not continuous. It's we are using only adjective. कल जो हमने स्ट्रक्चर प्रैक्टिस किए थे ना, उसके Okay आगे हम sir. Okay. Okay. एडजेक्टिव डाल रहे हैं। अगर हम Okay sir. Got it. कंटिन्यूस बनाना है तो आईएनजी वर्ब डालनी पड़ेगी। Okay sir. ओके, यस, विच इज योर एडजेक्टिव?
Busy or Happy. tall, clever, rich or noble, thin, thick, and whatever you So want to select. happy. Happy. Okay. May I start? Yes, sir. Your time starts now. I am happy, we are happy, you are happy, they are happy, he is happy, she is happy, it is happy, Ram is happy, and Sham is happy. I am not happy, we are not happy, we are not happy, you are not happy, you are not happy, they are not happy, he is not happy, she is not happy, it is not happy, Ram is not happy, and Sham is not happy. Am I happy? Are we happy? Are you happy? Are you happy? Are they happy? Is he happy? Is she happy? Is it happy? Is Ram happy? And is name happy? Sham happy. Am I happy? Are we happy? Are you Am happy? I Are not you happy? happy? Am I not happy? Right four. Am I not happy? Are we not happy? Are you not happy? Are you not happy? Are they not happy? Is he not happy? Is she not happy? Is it not happy? Is Ram not happy? Is Sham not happy? Why are mm, why am I happy? Why are we happy? Why are you happy? Why are you happy? Why are they happy? Why is he happy? Why is she happy? Why is it happy? Why is Ram happy? And why is Sham happy? Why Great. am I not happy? Why Why are we not am happy? I why am I not happy? Why are we not happy? Why are you not happy? Why are you not happy? Why are they not happy? Why is he not happy? Why is she not happy? Why is it not happy? Why is Ram not happy? Why is Sham not happy? Great. Take your time. Yes. Okay. So needed So once more practice. time. One more time. Would you like to try? Yes, sir. Sure. Same with same adjective. No, sir. Okay. It's great. Great. Say great. 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 Right. Great. Great. If Okay, we sir. speak American English, like I'm praying by courage. Stop. हम अमेरिकन इंग्लिश में भी बात करेंगे ठीक है Yes, sir. Okay, sir. मैम योर टाइम स्टार्टिंग राइट नाउ Okay. I am great, we are great, you are great, they are great, he is great, she is great, it is great, Ram is great, and Sham is great. I am not great, we are not great, you are not great, they are not great, he is not great, she is not great, it is not great, Ram is not great, and Sham is not great. Am I great? Are we great? Are you great? Are you great? Are they great? Is he great? Is she great? Is it great? Is Ram great? Is Sham great? Am I not great? Are आर we not great? Are you not great? Are you not great? Are they not great? Is he not great? Is she not great? Is it not great? Is Ram not great? Is Sham not great? Why am I not? Why great am I great? Why are you great? Why are you great? Why are you great? Why are they great? Why is he great? Why is she great? Why is it great? Why is Ram great? And why is Sham great? Why am I not great? Why are we not great? Why are you not great? Why are you not great? Why are they not great? Why is he not great? Why is she not great? Why is it not great? Why is Ram not great? Why is Sham not great? 1 minute 20 what was the previous time 1 minute So 1 minute 48 seconds. 48 seconds okay practice makes everybody perfect now Om what are you taking Good. good I'm good Yes, are sir. you okay am I good Yes, sir. okay let's go ahead Mr. Om that what you have on your mind just share it your time starts now I am good. We are good. You are good. You are good. They are good. He is good. She is good. It is good. Ram is good. Shyam is good. I am not good. We are not good. You are not good. You are not good.
They are not good. He is not good. She is not good. It is not good. Ram is not good. Shyam is not good. Am I good? Are we good? You are good. You are good. They are good. Is he good? Is it good? Is she good? Is Ram good? Is Shyam good? Am I not good? Are we not good? Are you not good? Are you not good? Are they not good? Is he not good? Is she not good? Is it not good? Is Ram not good? Is Shyam not good? Why I good? Why are you good? Why am I good? Sir. Why am I good? Why are you good? Why are you good? Why Why are they they are you good? why are they good? Why are they good? Why is he good? Why is she good? Why is it good? Why is Ram good? Why is Shyam good? Why I am Why am I not good? why am I not good? Why are you not good? Why are we not good? Why are we not good? Why are you not good? Why are you not good? Why are they no good? Why is he not good? Why is she not good? Why is it not good? Why is Ram not good? Why is Shyam not good? Check your time. 1 minute 57 57. seconds. So we need to improve Practice. ourselves. Yes, sir. Okay. So ये I think पता there was some mistake in type 3. mistake. Yes. Type what mistake? Home side mistake or from Home which side side? mistake, sir. Yes. What is mistake? Can Are you we tell? are we happy? Okay. He said we are happy. You are happy. You are happy. Yes. They are happy. Yes, sir. Okay. Type 4. That's why अब आपको पता चल रहा है कि कहाँ मिस्टेक हम निकाल सकते हैं. Yes, sir. सुनने से क्या पता चल रहा है कि हमारे माइंड में वो चीज है, जब कोई सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है ना तो हम उसकी गलती निकाल सकते हैं, इंस्टेंटली निकाल सकते हैं. ओके. दैट्स वाई. Yes, sir. और ओम आप भी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए. पता नहीं एक एक घंटा कहाँ निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है. हाँ. Yes, sir. टाइम Yes, sir. टाइम कहाँ ज्यादा हो जाता है. प्रैक्टिस प्रैक्टिस में कोई चीज ज्यादा नहीं बताते फिर भी. ओके. तो सो वैसे हम हाफ एन आवर लेके चले थे लेकिन 1 घंटे में पता भी नहीं चलता. हाफ एन आवर ही लेता हूँ मैं बच्चों की क्लास. अब पता नहीं कहाँ 1.5 घंटा क्रॉस हो रहा है. 6 o'clock पे बैठा हूँ मैं, पता ही नहीं चलता आप लोगों के साथ. ओके. बच्चे हो तो फिर भी डरा के इनवा, चलो आज वाइंड अप करते हैं. आप आगे से डरा के. सीखने में भी अच्छा लग रहा है. तो वो मेरे को भी पता नहीं चल रहा है एक्चुअली कि ये टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है. 6 o'clock पे स्टार्ट करते हैं. 7:30 मतलब एग्जैक्टली मैं ये लेके चला था 30 मिनट्स की क्लास होगी जिसमें 15 मिनट्स प्रैक्टिस सेशन रखेंगे. 15 मिनट्स. बट it feels me good. Then we practice here. Okay. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. Yes. सर एरोडाइट का मतलब क्या होता है? कल परसों से माइंड में आ रहा Eru- है. erudite means a person who is very intelligent, having a perfect knowledge in every field. Okay. ओके. I'm sharing you a screen on the Google. See, what is the mean of erudite? I will check. I will show you. Sir, check Uh, almanac also. yes. See, almanac is a complete panchang in Hindi. Okay. Okay. See, can you see the screen? Yes, sir. My laptop is going to discharge. Erudite meaning in Hindi. Vigyanik. Vidwan. Okay. Hmm. Definition, if we tell in English, meaning in English, what is the meaning of English? Yes. Having or showing great knowledge that is based on careful study. That is Erudite. एरोडाइट. erudite. Clear? यस सर. Vidwan. Intelligent. That is the meaning of erudite.
Yes. and everybody wants to get erudite in that. Okay. Yes, sir. विद्वानों की स्कूल है सर. So one more sentence is pending. Your tongue is very, very important. Very, very important. So one more Okay. sentence is pending. Yes. She has beaten her daughter because she was drunk. That was sentence. Yes. Why has she bitten and who was drunk? So I think mother is drunk. इसकी हिंदी करो, देखिए क्या होती. उसने अपनी बेटी को पीटा क्योंकि उसने पी रखी थी. बेटी ने पी रखी थी या माँ ने पी रखी थी? माँ ने पी रखी थी सर. तो माँ ने पी रखी थी, उसको पता नहीं चला, इसलिए उसने डॉटर को पीट दिया. डॉटर कैसे पिएगी? छोटी Yes. होगी. Yes. दैट इज बेसिक कॉमन सेंस. बट ऐसे ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. जैसे ऐसा भी हो सकता है कि मतलब बेटी ने पी हुई थी इसलिए माँ ने मारा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है बेटी कि यहाँ पे पीटा है. हम्म, मारना और पीटने में फर्क होता है. ठीक है. हम्म, मारते हैं तो यहाँ पीटते किसको? हम जनरली छोटे बच्चों को पीटते हैं. ठीक है. okay, पिटाई करते हैं ना अपन ऐसे. किस तरह से बच्चों को कैसे पीटते हैं? मैं तो छोटे पीटा बच्चों ही को नहीं. हाँ, और डांट मन ही नहीं डांट करता है पीटने का. मैं पीटता हूँ सर को. आप पीटते हो तो. हाँ सर. तो मारने में और पीटने में क्या क्या डिफरेंस आएगा? मारने में क्या है, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में. जैसे ओके, लातों तो घूसों से मारने मार. के लिए क्या वर्ड यूज होगा? यहाँ पे सेमी जनरली किल यूज करते हैं, जबकि किल का मतलब होता है जान से मारना. जान से मारना. ठीक यस है. सर. लेकिन जनरली ये एक हम कह सकते हैं कि वो इनफॉर्मल वर्ड हो गया है. आई यस किल सर. यू. जनरली हर कोई यूज करता है, आई किल यू. तो एज इट इज अदर लैंग्वेज से उठाए, जबकि अगर आप किल को एक्चुअली सर्च करेंगे ऑक्सफोर्ड में तो ये होगा जान से मार जान से देना. मारना. इट्स तो ओके. आई बीट यू, वैसे आई बीट यू भी आई आता है. बीट आई यू बीट मतलब यू. है हल्के पिलके पीटूंगा, उससे लॉस कुछ नहीं होगा. यस सर. ठीक है. एक तो पीटने में बहुत सारा नुकसान हो जाता है, उसे मारना कहते हैं. यस सर. और एक मारना सीधे ऊपर पहुंच जाना. तो सर इंग्लिश में अपन को कभी नहीं बोलना चाहिए आई विल किल यू. हाँ, किल यू नहीं बोलना चाहिए. मेरी पर्सनल राय ये है. ओके. कि आपको किल नहीं बोलना चाहिए. अपन सही तो नहीं बोल रहे हैं रहता. मार दूंगा और आगे आई वाला गिव सोचते हैं यू कि अ भैया स्लैप. जान से ही मार देगा. आई स्लेप यू बोलना चाहिए. मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, ऐसा बोलना चाहिए. आई स्लैप यू. आई विल गिव यू अ स्लैप. ना, आई स्लेप यू. गिव लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्लैप ऑलरेडी वर्ब है. थप्पड़ मारना तो ऑलरेडी ना आता है उसमें. ठीक है. अब गिव आई यू स्लैप स्लैप, यू. तो वहां पे स्लैप क्या हो गया? नाउन हो गया. थप्पड़. थप्पड़ मारना नहीं निकल रहा है. आई वही तो स्लैप यू. कॉन्सेप्ट मैंने समझाया. वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया. यस सर. ओके. सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. तो टाइम नहीं मिल पाता है. वो चाहता तो बहुत कुछ सिखाना, लेकिन क्या करें. ओके. आप यहाँ बैठे हो, धीरे मैं आप. धीरे सीखने में अच्छा लग रहा है. पहले दिन थोड़ी हेजिटेशन थी, दूसरे दिन थोड़ा सा ऐसे. हेजिटेशन तो रखना ही नहीं है. हेजिटेशन आप रखोगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आपको नॉलेज है. अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में, एक ही चीज है. फेस करो. फेस द प्रॉब्लम. ठीक है. जब तक आप प्रॉब्लम, कौन प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है? बड़ा से बड़ा आदमी क्या है? अपन किस पे देख रहे हैं? मोदी जी को किस पे देख रहे हैं? हम्म. किस पे देख रहे हैं? आप पर्सनली जानते हो क्या उनको? नो. आप कैसे कह रहे हो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हम तो वोट उनको देंगे? कैसे कह रहे हो? कहीं कहीं वीडियो देखा होगा आप? यस. हम्म. क्या मोदी जी के चाय पी के आए क्या आप पास में बैठे? तो बिल्कुल बड़ा नहीं. बनना है ना, तो कैमरा फेस करना पड़ेगा आपको. यस सर. इज नहीं तो फेसिंग द फिर तो मैं कैमरा. ऑडियो कॉल पे पढ़ा दूं आपको, कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी पढ़ा दूं. बहुत सारे मेरे पास हथियार है, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं ऐसा. क्योंकि आपके थ्रू कितने बच्चे जुड़ेंगे, उनका कितना भला होगा, ये सोचिए ना आप. आपके टचिंग में कोई आएगा, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. इंग्लिश तो हम्म. हर जगह काम आती है. और करियर में केवल इंग्लिश आने की वजह से सैलरी लाखों तक पहुंच जाती है, केवल इंग्लिश की वजह से. यस. हाँ सर सही है. और इंग्लिश को हटा दो आप, कोई कोई वैल्यू नहीं है आप.
ओके, आपके दो, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा आपके स्कूल में। तो हिंदी वाले भी सीरियस नहीं लेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको रियल बताता हूँ, मैंने इंग्लिश सीखने के लिए दुनिया भर के सारे जतन किए, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। फिर मेरे को खुद के ऊपर रिसर्च करनी पड़ी। मैं कहा ये टेक्निक है और इसी को सबके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह से इसका जन्म हुआ। जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आजकल स्कूल में भी बिजनेस हो गया है ना, सारी बुक्स लगा रहे हैं, तो बुक्स पे काम कौन करेगा? ये तो मैं ही आपको दे दूं। आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, मैकमिलन है, 200-300 करोड़ रुपए की कंपनी है वो। क्या करती है? ट्रेनिंग देती है? केवल बुक देती है? जैसे सर हमारे हॉस्पिटल में, जोधपुर एम्स में, डॉक्टर हम्म। सब इंग्लिश में बोलते हैं सर। हम्म। हिंदी में कोई बात नहीं करता। आप ऐसे होम अभी क्या कर रहे हो? किसमें प्रिपरेशन सर कर रहे हो? नहीं सर, ऑलरेडी हूँ सिलेक्टेड। किसमें? एम्स? एम्स में? यस सर, एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर मैंने में आप सर सिलेक्टेड? मतलब थर्ड फोर्थ ईयर में था बीएससी नर्सिंग के सर, उस टाइम से प्रिपरेशन चालू कर दी थी मैंने। जैसे बीएससी नर्सिंग खत्म किया और यूं डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव पार कर दिया। ठीक है, तो बड़े आप डॉक्टर बन जाओ, कुछ बन जाओ ना, तो फिर भूल मत नहीं, जाना। ऑलरेडी बना हुआ है सर। नहीं, है भूल मत सर। जाना। फिर बड़े हाँ बन सर। जाओ ना। ठीक है, तो हाँ पाँव सर, वो जमीन तो पे ही अपडेट रखना, बने पाँव जमीन पे उठने नहीं चाहिए, जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। रहो। ठीक है, जमीन छोड़ देंगे तो फिर गुरु को चक्कर कभी पड़ भूलना जाएगा। नहीं चाहिए। गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। आप कई लोग क्या सर, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो फिर वो क्या है कि पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर अपनी अलग दुनिया में चले जाते हैं, तो फिर समय वापस उनको जवाब देता है। बस। ईमानदारी मत छोड़ना बस, और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमेशा रखना आप, चाहे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, किसी को भी ट्रीट कर रहे हो। पर सर है तो ना, आप